معروف صحافی دانش صدیقی کا جسد خاکی آج افغانستان سے دہلی پہنچ چکا ہے۔ ایئر انڈیا کے ذریعے دانش کے جسد خاکی کو دہلی لایا گیا۔ اب سے کچھ دیر بعد رات 10 بجے دانش صدیقی کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ افغانستان میں رپورٹنگ کے دوران گولیاں لگنے سے دانش کی موت ہو گئی۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی ہے، کئی گولیاں لگنے سے دانش کی موت ہوئی۔ فوٹو جرنلسٹ دانش صدیقی نے اپنی تصویروں سے الگ شناخت قائم کی۔ یادگار اور خطروں سے پر لمحات میں لی گئی تصویریں ہمیشہ دانش کی یادیں تازہ کرتی رہیں گی۔ آگے بڑھیں گے۔ مدھیہ پردیش کے گنج باسودہ میں کنواں دھنسنے اور 11 لوگوں کی موت کے حادثے کے بعد شیوراج سنگھ حکومت نے سروے کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انچارج وزیر وشواس سارنگ کا کہنا ہے کہ گنج باسودہ کے حادثے کے بعد حکومت نے ریاست گیر سطح پر سروے کرانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ایسے حادثے دوبارہ نہ ہوں اور وہ تمام مقامات جہاں پر پانی کی مشکلات ہیں اور کنویں شکستہ ہو گئے ہیں ان کے مرمت کرانے یا پھر انہیں بند کرا کے وہاں پانی مہیا کرانے کا کام کیا جائے گا۔ حادثے میں ریسکیو آپریشن کے ذریعے 11 لوگوں کو محفوظ نکالا گیا تھا، جن کا علاج ودیشا اور بھوپال کے اسپتالوں میں جاری ہے۔ انچارج وزیر وشواس سارنگ حادثے میں زخمیوں سے ملاقات کی اور انہیں حکومت کی جانب سے تمام طبی سہولیات دینے کا یقین دلایا۔ سروے کو لے کر کیا کہتے ہیں انچارج وزیر، آپ بھی سنیے۔ کا وشے ہے اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایسی کچھ اسٹریٹجی بنائیں کہ ایسے حادثوں کی پنراورتی نہ ہو، اور اس کے لیے جہاں ایک اور سمست ایسے استھانوں پر ایک سروے کرایا جائے گا کہ ایسی دقت پھر سے نہ ہو، اور یہ سنشچت کیا جائے گا کہ لوگ جن جاگرن کے مادھیم سے بھی ایسے حادثوں۔ اردو صحافت کی ایک روشن تاریخ ہے۔ جامع جہاں نما سے اردو صحافت کی جو روشن تاریخ شروع ہوتی ہے، اس نے 200 سال میں نہ صرف زندگی کے سبھی شعبہ حیات کو متاثر کیا بلکہ صحافت کے سبھی شعبوں میں اس کی افادیت کو تسلیم کیا گیا۔ جامع جہاں نما کا آغاز 27 مارچ 1822 کو کیا گیا تھا۔ 27 مارچ 2022 کو اسے جاری ہوئے 200 سال ہو جائیں گے۔ بینظیر انصار ایجوکیشن سوسائٹی نے اس موقع پر 2022 کو پورے سال اردو صحافت کے جشن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اردو صحافت کے 200 سالہ جشن میں نہ صرف اردو صحافت کی تاریخ پر روشنی ڈالی جائے گی بلکہ تحریک آزادی میں اردو صحافت کے نمایاں کردار کو بھی پیش کیا جائے گا۔ مشاورتی میٹنگ میں دانشوروں نے اردو زبان، تدریس اور مسائل پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اردو صحافت کے 200 سالہ جشن کی تیاریوں کو لے کر بھوپال میں ایک مشاورتی جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں دانشوروں نے اردو صحافت اور جشن کے انعقاد کو لے کر کچھ اس طرح سے روشنی ڈالی۔ 2022 میں اردو صحافت کے 200 سال مکمل ہوں گے۔ مدھیہ پردیش سے ایک تحریک شروع کی جا رہی ہے کہ پورے ہندوستان میں اس کا جشن منایا جائے۔ اس کو لے کر کیا خاکہ تیار کیا جا رہا ہے، اس پر ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اردو کے ممتاز ادیب، شاعر اور جو محبان اردو موجود ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے آپ لوگوں نے تمام چیزوں کا ارینج کیا؟ دیکھیے، مسائل تو بہت ہیں اور ایک مسئلہ جو ہے صحافت کا بھی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مسئلہ بڑا جو ہے اہم، یعنی صحافت یا اخبار سے بھی زیادہ مسئلہ ہے اردو کی تدریس اور تعلیم۔ آزاد ہندوستان میں سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال میں اگر کوئی ہے تو وہ مادری زبان کی تعلیم و تدریس ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ حرف شناس بنائیے، ماحول سازی کیجیے، اور اگر گھروں گھر ہم اردو کا ماحول پیدا نہیں کریں گے تو یہ ہماری ساری کوششیں بیکار اور رائگاں ہوں گی، اس کی کوششیں بیکار ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ 200 سال صدی ہم منانے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اور کب سے شروع کریں؟ یہ اب شروع ہو گیا، آج سے ہی شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے پوری تحریک چلائیں گے، اسٹیٹ لیول پہ، نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، اور ساتھ ساتھ جب تک جو ہے گھر گھر انڈیویجول لیول پہ، کلیکٹیو لیول پہ اور ساتھ ساتھ سرکاری کے ساتھ ساتھ نہیں ہوگا تو نہیں ہو پائے گا۔ جب تک پڑھنے پڑھانے کا، درس کا، تدریس کا کام نہیں ہوگا تب تک یہ مہم نہیں آگے چلے گا۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو سب کو مل کے کام کرنا ہے، کیونکہ یہ بھوپال ایک ایسی جگہ جو بہت بڑا سینٹر ہے۔ اس کا دیکھا جائے تو جغرافیکل، ٹاپیکل اور تمام یہاں پہ بڑے بڑے شاعر انٹرنیشنل فیم کے منظر بھوپالی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نوان صاحب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور عارف مطلب پورا بھوپال یہاں پہ اردو داں کا یہ گڑھ ہے،
और यहीं से ये मूवमेंट होना चलना चाहिए। ये एक ऐसी इनक्रेडिबल प्लेस है जहाँ से इस तहरीक को बहुत बड़ी हाइट, बहुत बड़ी बुलंदी मिलेगी। मिलना चाहिए, क्योंकि जब हम यूनाइटेड इंडिया की बात करते हैं तो रियासत भोपाल वो पहला शहर है जहाँ से उर्दू को सबसे पहले सरकारी ज़बान बनाया गया था। और फिर हम 200 साल में जो उर्दू सहाफ़त की बात करें तो मंदर साहब किन किन पहलुओं पे काम करने के? देखिए, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, जैसे नौमान सर हैं, हमारे वज़ीर अंसारी साहब हैं, इतनी बड़ी शख्सियत है हम लोगों के यहाँ। भोपाल खुशनसीब लोगों का शहर मानता हूँ मैं हमेशा से, कि यहाँ अदीब भी बड़े हुए, अफसर भी बड़े हुए, उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग भी हमेशा हमेशा रहे। मगर देखिए, बिना सरकार के सपोर्ट से हम कुछ भी नहीं कर सकते। एकेडमियों का किरदार जो है, चाहे वो मध्य प्रदेश एकेडमी हो, चाहे वो दिल्ली हो, या कोई सिर्फ मुशारा एकेडमी बन गई। वो तालीम की तरफ सोच ही नहीं रही कि नए नर्सरी स्कूल खोलें, मोहल्लों में जाकर बच्चे पढ़ाएं। वो तो सिर्फ मुशारा कर रहे हैं, जो किसी के समझ में नहीं आया। हम 40 साल से मुशारा पढ़ते हैं, मगर अभी तक हमारे समझ में नहीं आया कि क्यों हमें इस तरह की बात करते हैं और लोगों की रात काली कर देते हैं। किसी के जहन में कोई ये बात नहीं आ रही। मगर अफसोस ये है कि सरकारी इदारे जो हमने बहुत मोहब्बतों के साथ, हमारे बुजुर्ग ने हमें विरासत में दे के गए थे, आज उनके हाल देख लीजिए क्या हो रहे हैं। सिर्फ एक प्राइवेट लिमिटेड बन गई है। और हम यही चाहते हैं कि उर्दू को से अगर मोहब्बत करने वाले लोग एक बार मैदान अमल में आ जाएंगे तो उर्दू का मुस्तक़बिल फिर इंशाअल्लाह सुनहरा और ताबनाक हो जाएगा। और ये जब तक मुमकिन नहीं है, जब तक सरकार हमें मोहब्बतों से नहीं नवाजे, उर्दू के लिए आगे नहीं आए। बजट तो हम भी दे सकते हैं, 2-4 करोड़ का बजट भोपाल वालों के लिए कोई कम मुश्किल बात नहीं है। हमारे यहाँ हैं लोग मोहब्बत करने वाले, मगर सरकार हमें काम नहीं करने दे रही। एकेडमियों में नाअहल लोगों को बिठा दिया है, उन्हें कुछ मतलब ही नहीं है। वो तो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं बजाय उर्दू के। तो मैं ये कहूँगा कि उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। हम तो करेंगे ही करेंगे, जो भी हम करेंगे ताउन करेंगे जितना भी हो सकता है। सरकार को आगे न आना चाहिए और ऐसे नाअहल लोग जो उर्दू को बर्बाद कर रहे हैं उनको हटा देना चाहिए। और फिर अगर हम उर्दू की बात करते हैं तो हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान की जितनी भी अकेडमियाँ हैं उनके दस्तूर में ये लिखा हुआ है टू प्रमोट उर्दू लैंग्वेज, लेकिन अकेडमियाँ जो है उर्दू के प्रमोशन का काम छोड़कर दूसरे काम कर रही हैं। तो यहाँ पे जो मीटिंग चल रही है उस मीटिंग में इस बात का भी खाका तैयार किया जाए कि ऐसे नाअहल लोगों की तकर्रुरी पर भी जो ऑब्जेक्शन किया जाए और ऐसी फ़ज़ा क्रिएट किया जाए ताकि उर्दू के लिए नई नस्ल में जो है आबियारी हो सके, उर्दू को उसका हक मिल सके, उर्दू सहाफ़त का प्रमोशन मिल सके। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। उर्दू ज़बान ख़त्म हो रही ये कहना गलत है, क्योंकि उर्दू की नई बस्तियां आबाद हो रही हैं और हमारे मुल्क में गैर उर्दूदा हजरात उर्दू के चाहने वालों की सूरत में सामने आ रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार मारूफ शायर खलीकुज़्ज़मा नुसरत ने किया। वो सहमाही रिसाला अक्स अदब की एक तकरीब में मदऊ थे। अक्स अदब के खुसूसी शुमारे में खलीकुज़्ज़मा के अदबी खिदमात का अहाता किया गया। इस मौके पर खलीकुज़्ज़मा नुसरत को अक्स अदब के अवार्ड से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में मारूफ अदबी शख्सियत भी मौजूद थीं। दूसरे स्टेट में भी ये औरंगाबाद के इस रसाले का चलन है, पढ़ने की आदत है लोगों को। और इसका जो ख़ास नंबर है वो एक दस्तावेज़ है। कल के दिन अगर हमारे ऊपर, जैसे मेरा नंबर गोशा निकाला गया, कल कोई पीएचडी करना चाहे तो उस गोशे से आसानी से पीएचडी कर सकता है। तो ये बड़ी बात है, इतनी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके लोगों से लिखवा के एक जगह कर दिया गया है। उर्दू के बारे में ये खौफा खड़ा किया गया कि उर्दू ख़त्म हो रही, ख़त्म हो जाएंगी। ये तो 1947 में भी कहा गया था कि उर्दू हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आज जो उर्दू बोलने वालों की तादाद हिंदुस्तान में 47 से 10 गुना ज़्यादा है और नई नस्ल इससे दूर हो रही है। लेकिन ये उर्दू में ऐसी मिठास और चाशनी है कि बड़े वो इंग्लिश मीडियम से या दीगर मीडियम से पढ़े हो, लेकिन इसके अशार जो है वो इस ज़बान की तरफ उनको रागिब करते हैं, वो चल के वहाँ पर आते हैं। आज बड़े बड़े शहरों में जो है दीगर ज़बानों में वहाँ के लोग इमारत शरिया के अमीर शरीयत के इंतखाब को लेकर इमारत में तैयारियां शबाब पर हैं। 8 अगस्त को अमीर शरीयत का इंतखाब होना है। वाज़ेह कि बिहार झारखंड में 851 अफराद उड़ीसा के इमारत शरीयत पर मुश्तमिल अरबाब हैं जो
हल और अक़्द के अराकीन अमीर शरीयत का इंतखाब करते हैं। नायब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी ने पटना में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि अमीर शरीयत के इंतखाब में मुकम्मल शफ़ाफ़ियत का मुज़ाहरा किया जाएगा। इस ताल्लुक से 9 जगहों पर इंतखाबात का मरकज़ बनाया जा रहा है, जहां CCTV कैमरे की निगरानी में अमीर का इंतखाब होगा। गौरतलब है कि अमीर शरीयत के इंतखाब को लेकर जमकर सियासत हो रही है। अमीर शरीयत के लिए मौलाना वली रहमानी के साहबजादे और खानकाह रहमानी के सज्जादा नशी मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी मैदान में है। वहीं इमारत के साबिक जनरल सेक्रेटरी और मारूफ आलिम दीन मौलाना अनीसुर रहमान कासमी भी अमीर शरीयत के उम्मीदवार हैं। हज़रात के इल्म भी आ गया कि हालात इस तरह से हैं कि अब बहुत ज़्यादा देर करना मुनासिब नहीं है सोशल मीडिया पर और यहाँ वहाँ जिस तरह की चीज़ें चल रही, इसलिए ये 11 रुकनी कमेटी में ये तय पाया कि अब जल्द अज जल्द हल हो जाए, इसलिए 8 अगस्त की तारीख़ तय पाई है। उम्मीदवार के सिलसिले में देखिए हमारे 851 अफराद अरबाब हल्लुक़्द के रुकन, उनमें से कोई भी फ़र्द हो सकता है, उनमें से और पूरे बिहार उड़ीसा झारखंड का कोई फ़र्द भी इसमें आ सकता है। इसको हम लोग किसी के साथ महदूद नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से 851 अफराद जिसको भी मुंतखब कर लेंगे वो अमीर बन जाएंगे। उनमें जो अक्सरियत से हो जाएं या मुत्तफ़क़ा तौर पर हो जाएं, अरबाब हल्लुक़्द कोई इख्तियार है कि वो जिसको चाहें चुन लें, वो अमीर बन जाएंगे। ऑनलाइन नहीं होगा, मैंने पहले ही वजाहत से कह दिया था कि ऑफ़लाइन ही हर हाल में होगा। तो इस वजह से या तो ये बैलेट पेपर के ज़रिए होगा ताकि उसमें नाम और दस्तखत अंगूठे का निशान और उसकी ID वगैरह के साथ होगा, मुकम्मल पूरी शफ़ाफ़ियत के साथ। पटने में हो या दीगर सेंटर्स पर हों, चंद मकामात बन कोविड की वजह से एक जगह 851 अफराद को बुलाना चूँकि मुश्किल है, तो इस वजह से हो सकता है कि अलग अलग। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मारूफ सहाफ़ी दानिश सिद्दीकी के जस्द खाकी को अफ़गानिस्तान से दिल्ली लाया गया और अब से कुछ देर बाद ही दानिश सिद्दीकी की तदफीन होनी है। क्या कुछ चल रहा है, सीधे हम दिल्ली का रुख करेंगे जहां जामिया कब्रिस्तान में अब से कुछ देर बाद ही उनकी तदफीन होनी है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद मजीद अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, क्या कुछ अपडेट है? अब से कुछ देर पहले आपने खबर दी थी कि दानिश सिद्दीकी के जस्द खाकी को अफगानिस्तान से दिल्ली लाया गया है, तदफीन कितनी देर में होगी? हुरैरा, देखिए यहाँ पर एक गमनाक माहौल है और हम इस वक्त दानिश सिद्दीकी का जो घर है वहाँ पर मौजूद हैं। आपको सामने जो एम्बुलेंस दिखाई दे रही है वो बिल्कुल इसी एम्बुलेंस में उनको लेकर आया गया है। सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम किए गए हैं। मकामी SHO पुलिस एहलकार यहाँ पर हैं। मीडिया की बहुत भारी तादाद यहाँ पर मौजूद है। लोगों की बहुत भीड़ आपको दिखाई देगी और कुछ ही देर कबल उनको ये जो घर है उनके वालिद का, उनका जो अपना घर है, उनकी अहलिया, उनके अहल खाना, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो उनका आखिरी दीदार कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ से उनको सीधे जामिया मिलिया इस्लामिया ले जाया जाएगा और वहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। और सबसे जो अहम बात है कि उसके बाद उनकी तदफीन जो है वो जामिया कब्रिस्तान में होगी। लेकिन अभी तक जो हमें अपडेट मिले हैं, क्योंकि जो कैफीन है, जो ताबूत है, उसको पूरा का पूरा जो है वो दफनाया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि तकरीबन 2 दिन हो चुके थे। 16 तारीख को उनकी शहादत हुई थी और उस शहादत के बाद तालिबान के ज़रिए से उनको अफ़गान हुकूमत को हैंड ओवर किया गया और फिर वहाँ से उनको यहाँ पर लाया गया। हुकूमत हिंद का बहुत ही मजबूत रोल रहा और कहना चाहिए कौमी अक़लियती कमीशन के जो चेयरमैन हैं आतिफ़ रशीद, वो लगातार यहाँ पर कम्युनिकेट करते रहे। वज़ारत ख़ारजा वो बातचीत करती रही। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर होती रही और अब उनको यहाँ पर ले आया गया है। तकरीबन 10 बजे के करीब उनकी तदफीन का जो शेड्यूल है वो यहाँ पर पूरा किया जाएगा। आप जानते हैं कि उनके जो अहल खाना है, उनकी जो अहलिया हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनका जो बेटा है 5 साल का, वो यहाँ पर है। उनकी एक छोटी बच्ची भी है। उनके भाई हैं, बहन हैं, वालिद हैं, वालिदा हैं। और अभी तक जो हमें मालूमात मिली है, उनकी वालिदा को भी पहले से नहीं बताया गया था, क्योंकि ज़ईफ़ भी हैं, बीमार भी हैं, तो उनको नहीं बताया गया था, आगाह नहीं किया गया था। तो अब जो आखिरी दीदार का जो मसला है वो यहाँ पर पूरा किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि तमाम चीज़ें जो वो बेहतर तरीके से हो पाएँ। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत हिंद ने इसमें काफ़ी कलीदी रोल अदा किया है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आपको मालूम है कि हुकूमत हिंद ने जो अक़वाम मुत्तहिदा है वहाँ पर जाकर बयान दिया और कहा कि जो दोस्त ममालिक हैं या जहाँ पर भी जो इंसानियत के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो हिफाजत है, उनका तहफ़्फ़ुज़ हो, उसको यकीनी बनाया जाए। और जो दहशतगर्दी, बिल्कुल खुर्रम, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है दिल्ली में और इसके अलावा
जो लोग नमाज जनाजा में शरीक होंगे या तदफीन में शरीक होंगे, तो ये तादाद क्या कुछ महदूद तादाद रखी गई है? क्योंकि जब जाबहक हुए दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में और जो खबर आई तो सहाफ़ी बिरादरी में एक तरह से गम की लहर दौड़ गई थी। ऐसे में क्या कुछ महदूद तादाद होगी जो उनके आखिरी सफ़र में उनके नमाज जनाजा में या तदफीन में शरीक होगी, या इसके लिए कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं? देखिए, यहाँ पर हालांकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आए हैं। अभी जो इंतज़ामात किए गए हैं वो ये है कि कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पूरे तरीके से उसको माना जाए, उसकी पासदारी की जाए, तो ये कोशिश ज़रूर की जा रही है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, ख़ासतौर से मीडिया के जो लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी तादाद आपको यहाँ पर दिखाई देगी। हालांकि पुलिस एहलकार हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, वो सबको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को सीधे तौर पर कहा गया कि आप जामिया कब्रिस्तान पहुँचें, मीडिया के लोगों को कहा गया कि आप सीधे तौर पर जामिया कब्रिस्तान जाएँ और भीड़ भाड़ ना हो, ये कोशिश ज़रूर की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से भारत को जिस सहाफ़ी ने, जिस बड़े सहाफ़ी ने ऐसे ऐसे फ़ोटो दिए, चाहे वो दिल्ली फसाद का मसला हो, चाहे रोहिंग्या का मसला हो, चाहे अफ़गानिस्तान की वॉर का मसला हो, जहाँ पर वो कवरेज कर रहे थे, तो जिनको पुलित्ज़र अवार्ड मिला, जिसको सहाफ़त का नोबल भी करार दिया जाता है, तो ये तमाम चीज़ें थी जो उनको बहुत आगे लेकर जा रही थी। उनके लिए बहुत सारे लोग अपने दिल में जो है मोहब्बत लेकर के, अक़ीदत लेकर के और अपने दिल में कहीं ना कहीं उनसे दिलचस्पी का इजहार करने के लिए, उनसे अपनी यगानत का इजहार करने के लिए वो यहाँ पर ज़रूर पहुँचे हैं। कितना एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएगा इसका पता तो थोड़ी देर बाद ही चलेगा, लेकिन अभी तक कोशिश ये की जा रही है पुलिस सिक्योरिटी की तरफ से कम लोग हों और जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका पूरे तौर से उनकी पासदारी की जानी चाहिए। अभी भी जो है आखिरी दीदार है उसकी जो प्रक्रिया है उसको जो है पूरे तौर से पूरा किया जा रहा है। घर के अंदर सिर्फ घर वाले हैं, किसी और को दाखिल होने नहीं दिया गया है। सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन आपको जो सहाफ़ी बिरादरी है उसके अंदर जो गम का माहौल है वो सबसे अहम है। और किसी भी मीडिया घराने का सहाफ़ी हो वो ज़रूर यहाँ पर हमको नज़र आया। रॉयटर के लोग यहाँ पर मौजूद नज़र आए हैं। सुबह से सिक्योरिटी लगी हुई थी। हालांकि किसी बड़े वज़ीर का यहाँ पर विज़िट नहीं रखा गया था कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से। तो तमाम चीज़ें हो रही हैं और कुछ ही देर में उनको यहाँ से सीधे तौर पर जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल में ले जाया जाएगा। वहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उसके बाद बिल्कुल जहाँ पर आप मौजूद हैं, यानी दानिश सिद्दीकी के घर से और जामिया कब्रिस्तान की कितनी दूरी है और कितना वक्त अभी लगेगा? क्योंकि जो पहली खबर आई थी कि रात 10 बजे तदफीन होनी है। बिल्कुल, देखिए यहाँ से सिर्फ कहना चाहिए कि आधा किलोमीटर के आसपास की दूरी है और पास ही में बिल्कुल इलाका है, क्योंकि खुद जो दानिश के वालिद हैं वो खुद जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर रहे हैं, फैकल्टी ऑफ डीन रहे हैं। उन्होंने बहुत सी खिदमत अंजाम दी है। खुद वाइस चांसलर यहाँ पर आई थी और उन्होंने खुद ऑफ़र किया था कि जामिया में उनको जगह दी जा सकती है। तो जामिया ने स्पेशल केस के तौर पर, क्योंकि जो अहल खाना होते हैं अगर वो माइनर होते हैं या वो खुद जामिया फैकल्टी से होते हैं तो उनको वहाँ पर जगह दी जाती है, लेकिन जो ज़्यादा बड़े होते हैं उनको जगह नहीं दी जाती। तो स्पेशल कोर्स के तौर पर उनकी तमाम खिदमात को देखते हुए जामिया ने ये फैसला किया और हुकूमत हिंद ने सीधे तौर पर बहुत बड़ा रोल अदा किया कि 6 बजे के करीब, जिस तरीके से शेड्यूल किया गया था, 6 बजे के करीब एयरपोर्ट पहुंचा उनका जज्द खाकी और वहाँ से खुद जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे कौमी अक़लियती कमीशन के वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद, वो खुद साथ साथ मौजूद रहे और जो उनका जज्द खाकी है उसको घर तक लेकर आए हैं। अभी तक भी वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और तमाम चीज़ें जो हम इत्तलात आपको पहुंचा रहे थे वो तमाम खबरें जो है हम सीधे तौर पर पहुंचा पाए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन अहम चीज़ ये है कि शोक का माहौल है, गम का माहौल है, तमाम लोग मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि दुख भरी खबर है खुर्रम, और नम आंखों से लोग दानिश का आखिरी दीदार कर रहे हैं। और लोग नहीं जानते थे कि इस बार दानिश जब अफगानिस्तान जाएंगे तो वो वापस नहीं आएंगे अगर, लेकिन वापस आएंगे भी तो कांधों पर इस तरह से आएंगे। बहुत दुख का माहौल है और गम की लहर है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब से कुछ देर बाद दानिश की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी और जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में रात 10 बजे तदफीन होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। उलमाए कराम के माशी, समाजी और तिब्बी मसाइल के हल के लिए बेंगलुरु में एक नई तंजीम कायम करने का फैसला लिया गया है। सी अब्दुल अजीज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत ये नई तंजीम शहर के
10 उलमा कराम पर मुश्तमिल होगी। बेंगलुरु की मस्जिद मुनव्वरा में मुनक्किदा इजलास में फैसला लिया गया। यहाँ सी अब्दुल अजीज वेलफेयर ट्रस्ट की तकरीब मुनक्किद हुई। मुंतखब उलमा कराम और दीनी मदारिस के असातिज़ा में बकरीद के लिए राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर ट्रस्ट के सदर और मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल हफीज़ ने कहा कि उलमाए दीन का मकाम और मर्तबा सबसे आला होता है, लेकिन उलमा को दरपेश मसाइल की जानिब बहुत कम तवज्जो दी जाती है। से देखा, उलमाओं के साथ जो है दीन का हौसला बढ़ता है, उलमाओं की तरफ से दीन वजूद में आता है। अगर उलमा ना होते हैं तो हम जो है कतराते और हलाल हराम की तमीज़ तक नहीं होती। वो अल्लाह की किताब को बोलने वाले, वो अल्लाह की पहचान दिलाने वाले, वो अल्लाह वाले अगर ना होते तो दीन में इजाफा नहीं होता। ऐसे उलमाओं का हक दर्द करना चाहिए, क्योंकि मरने से लेके पैदा होने से लेके मरने तक उलमाए दीन हमारा साथ देते हैं। मेरे जो भी दाने दर्द सख्त में आधे मेरी फैमिली के हक में दूंगा, मेरे खुशखारी के हक में दूंगा, और आधी मेरी दौलत उलमाओं के दीन के इरादों में, दीन के लिए, मदरसे मसाजिद के लिए, उलमाओं के हक में। ईद उल अजहा के त्यौहार के पेश नज़र मुस्लिम शख्सियात साफ सफाई का ख्याल रखने की अपील कर रहे हैं। IPS अफसर और रेलवे कमिश्नर ऑफ पुलिस कैसर खालिद ने मुसलमानों से साफ सफाई का ख्याल रखकर कुर्बानी का त्यौहार मनाने और हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल आवरी की अपील की है। गाइडलाइन अभी अभी इशू हुई है इस साल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से किसी भी प्राइवेट आदमी को ना तो किसी गाड़ी को चेक करने का कोई अधिकार है, ना कहीं पर नाका लगाने का कोई अधिकार है, ना किसी को पीछा करने का कोई अधिकार है। कोई ट्रक अगर जानवर लेकर जा रहा है और उसमें कोई वायलेशन हो रही है तो इसके लिए जो पुलिस यंत्रणा है उसको बताया जाएगा। कार्रवाई का अधिकार पुलिस यंत्रणा को है, शासन को है, वो कार्रवाई करेंगे। कोई प्राइवेट आदमी अगर वहाँ पे कार्रवाई करता है तो वो गलती कर रहा है। वैसी गलती वो आदमी कर रहा है जो कि कैटल के ट्रांसपोर्ट के जो नियम है उसका वायलेशन कर रहा है। आप जानवर का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके जो नियम है, उसको जो स्पेस चाहिए उस हिसाब से, और वही जानवर आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जो परमिटेड है। ना हम आजूदा हूँ, ना हम किसी और को आजूदा करें, ना खुद तकलीफ में आए, ना किसी और को तकलीफ में लाएं। हम समाज कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क के टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।